Rohit, can you see this particular screen? Yes, ma'am. Okay. So I was telling that if you have applied the filter, if it is only as per sort or as per color, then it's going to give only color sorting. Okay, so all the pink colors have come together. The rest of the text is down. But then this is not sorted as per the numbers. Largest to smallest, smallest to largest. हे तुम्हाला specifically सांगावं लागेल. Now, since it is conditional formatting, if you had said largest to smallest, you will see that the color is also sorted, and at the same time, we have the numbers also sorted. Can you see? So minimum and the maximum as well, right? So then there is a difference between only color sort and then actual sort. And because there is a conditional formatting on this, then you will get the colors together. So here, since you have applied conditional formatting and you have mentioned top 10, so I've mentioned here top 10. So only top 10 have got colored, right? But when you are arranging in the descending order, the numbers are also there, at the same time colors are also sorted. Okay, so take the bagun gya. Similarly, in this particular data, if you are arranging largest to smallest, okay, like this, and you can also sort by color accordingly. So normally this is a data bar, so it doesn't have a color directly. You can see it on this sort by color. So you'll see only those colors coming up first. Okay. But if you wanted to sort the entire data, then arrange it largest to smallest and you will get a consistency. Okay. So वो एक है दिखने जैसा है. You can just apply it and see this one quickly. Okay. Sort by color also and sort by the numbers. एक बार तो नजर से डाल दीजिए, then you will have a better idea. So this is a stock data, isn't it? So we have a sports shop, sports garment shop, and this is your stock with you. Okay. अब इसमें being an owner of this particular shop, what information would you like to find out? मार्क लिस्ट पर हमने निकाला है ना, टॉपर ऑफ द क्लास, टॉपर ऑफ दिस एंड दैट. अब इस पे सोचो आप and let me know what all you would like to find out as a owner of this particular shop. क्या क्या निकालना चाहोगे आप इसमें से? स्टॉक किसका बचा हुआ है? Okay, so write it down. Write down in your books. Minimum stock कौन से आइटम का है? Which item has the minimum stock? Similarly, which item has the maximum stock? So when you say item means, is it description that you're talking about, Vishal? Means कौन सा item माने what is the product type? सपोज आपका कुछ कंपनी है, तो मिनिमम स्टॉक मतलब स्टॉक नील होना है, ऑर्डर्स करने के हाँ, लिए कौन से इसका यहाँ पे Stock स्पेसिफिक है. हाँ, किस चीज का स्टॉक क्वांटिटी? सभी. So you are talking about the general कि सबसे मिनिमम कौन सा है, स्टॉक क्वांटिटी किसका सबसे मिनिमम है, right? That's what you're trying to find out. That's what you're saying, right? Not specifically any product type. ठीक है, makes sense. Okay. Minimum stock, maximum stock, और क्या? Value किस चीज का? Minimum stock value, maximum stock value. That's what you're trying to tell me. Yes, Rohit, any input from your side? इसमें मिनिमम कौन से इसका रेट, मिनिमम रेट मैक्सिमम रेट भी निकाल सकते हो आप. कौन से आइटम का सबसे मिनिमम रेट है, कौन से आइटम का सबसे मैक्सिमम रेट्स है. क्वांटिटी तो चाहिए बिकॉज क्वांटिटी इज आइडियली द मोस्ट इम्पोर्टेंट. स्टॉक में है नहीं है, राइट?
What will be the importance? Can I data bars just to compare which is the maximum second? Maximum, ये तो सेल का डेटा है नहीं. This is a stock data. So maximum stock value and minimum stock value. Okay, fine. अभी सिर्फ सॉर्टिंग के बारे में मत सोचो. You have done functions also. Yes or no? color wise quantity. Right? Okay. Color wise quantities. तो फिर साइज वाइज क्वांटिटीज भी आ जाएंगे. रोहित, राइट इट डाउन ना एट योर एंड आल्सो. Yes, ma'am. So color wise quantities, product type wise quantities आ जाएंगे, item size wise quantities भी आ जाएंगे. Those are the most important parameters as the owner of that particular shop, right? कैसे निकालोगे? साइज वाइज क्वांटिटीज कैसे निकाला आपने इससे पहले? क्या यूज किया था? सिर्फ इफ यूज किया था, So सम इफ यूज किया था, राइट? फाइन. चलो, जो भी क्वेश्चंस आपको मिले उसको सॉल्व करके दिखाओ अभी. तो डेटा तो आपके पास सेम है ना, सबके पास एक ही डेटा है ना अपने पास, स्पोर्ट्स डेटा वाला, स्टॉक डेटा का, राइट? अब इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इसके लिए क्या यूज करोगे वो पहले सोचोगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट द रिजल्ट्स, and we are all going to discuss the results in 10 minutes. Yes. See, some places you will need sum if, some places you are going to need sorting. Yes or no? अगर filtering की जरूरत पड़े तो filtering, conditional formatting की जरूरत पड़ेगी तो conditional formatting. I'll give you 10 minutes. 15 minutes ले लेते हैं अभी, ठीक है? Okay. So let's see another feature today under data only, which is called as the data tools. Okay. Now data tools किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आप डेटा एंटर कर रहे हो ना डेटा के अंदर, तब इस्तेमाल होता है. ठीक है? आप बोलोगे फिर वो पहले क्यों नहीं देखा हमने? बट डेटा एंट्री इनसाइड एक्सेल डज नॉट मीन कि आप सिर्फ ना मैन्युअल टाइप करके डेटा एंटर कर रहे हैं. कभी कभी आपको डेटा कहीं और किसी और सोर्स से पुल करना पड़ता है एक्सेल के अंदर. ऑलराइट? सो दैट आल्सो इज अ टाइप ऑफ डेटा एंट्री इनसाइड योर एक्सेल. ठीक है? तो मैन्युअल एंट्री एक टाइप हो गया. दूसरा टाइप है कि आप कोई डेटा पुल कर रहे हो बाहर के किसी दूसरे सोर्स से, किसी दूसरे एप्लीकेशन से आप ले रहे हो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो डेटा एंट्री. ओके. एंड जो ऑलरेडी डेटा आपने डाला हुआ है, इट मे बी फ्रॉम सम रिपोर्ट ऑल्सो. जैसे मैंने बताया कि आजकल सभी कंपनीज में यू आर गोइंग टू पुल द डेटा एज अ रिपोर्ट. जैसे सैप में आप एंट्री होती है हर जगह पे, लेकिन उसमें से जो रिपोर्ट निकलता है वो रिपोर्ट एक्सेल के अंदर आ जाता है. गॉट इट? नाउ इफ यू हैव सैप, then the data which is the report which is coming inside your excel, जो डेटा आ रहा है वो बहुत क्लीन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज क्लीन. लेकिन जो ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो सैप के लेवल के नहीं है, एसएपी के लेवल के नहीं है. सो व्हेन आई से एसएपी लेवल माने, इन्होंने जब डेटा बनाया, उसका जो डिजाइनिंग किया, उसको उन्होंने 13 इयर्स लगाया एक डेटा को बनाने के लिए, डेटा का डिजाइन बनाने के लिए, राइट? बहुत सोच समझ के उन्होंने वो डेटा बेस डिजाइन किया है, राइट? जब हम किसी छोटे वेंडर से लेते हैं सॉफ्टवेयर लाइक एसएपी, एसएपी इज अ ईआरपी सॉफ्टवेयर, तो अगर हम वहां से लेते हैं तो उस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बहुत अच्छी तरह से सोचा नहीं होता है. ओके? डेटाबेस डिजाइन इतना डिटेल में सोचा नहीं.
राइट? तो जब आप रिपोर्ट निकालते हो तो बहुत ही अनक्लीन डेटा आता है आपके एक्सेल के अंदर. ओके, सो मीन्स व्हाट कि जब डेटा एंट्री हो रही है आपके एक्सेल के अंदर तब बहुत अनक्लीन डेटा होता है. राइट? सो अनक्लीन डेटा, देर आर एन नंबर ऑफ अनक्लीन डेटा. ओके, तो इसमें हम टाइप्स देखेंगे. राइट? एंड दीज डेटा टूल्स what we are going to see, these are all used to clean the data. Okay, so data entry के वक्त भी या फिर आप डेटा पुल कर रहे हो कहीं से तो भी आपका डेटा क्लीन करने के लिए या फिर क्लीन रखने के लिए भी ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. इसमें पहला जो सेक्शन है विच इज टेक्स्ट टू कॉलम्स. ओके, टेक्स्ट टू कॉलम्स. अब टेक्स्ट, सिंपल एग्जांपल देना है तो यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास ऐसा डेटा आता है किसी सॉफ्टवेयर से. आई एम जस्ट गिविंग अ सैंपल. टेक्स्ट कोई भी हो सकता है. सो ऐसा टेक्स्ट पुल होता है. ओके, नाउ व्हाई, दैट्स अप टू दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर. उसने ढंग से सोचा नहीं, कुछ नहीं. जो टेक्स्ट में है ना स्पेसेस है, लेकिन ये अलग अलग कॉलम्स में था एक्चुअली. या फिर कभी कभी है ना कॉमा कॉमा होता है दो वर्ड्स के बीच में. ऐसा डेटा पुल होता है. अब जब वो इसमें आता है, इस पर्टिकुलर एक्सेल में आता है, तो दिस इज नॉट कमिंग इन द कॉलम्स ना. ये ऐसे ही टेक्स्ट का टेक्स्ट ऐसे ही उठा के यहाँ पे आ जाता है. नाउ इट्स योर टास्क टू डिवाइड इट इनटू कॉलम्स या फिर सेपरेट आउट करना है. ओके, in that situation there is one tool which is called as text to columns. Right? So when you click on this you can convert this from text to columns. यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है कि दो वर्ड्स के बीच में या फिर here it is words, लेकिन ऐसे कभी कभी है ना there are small numbers also, जैसे फोन नंबर होता है. that also we'll see how it works. तो यहाँ पे टेक्स्ट है. टेक्स्ट के दो टेक्स्ट के बीच में कुछ तो एक डीलिमिटर होता है. डीलिमिटर मीन्स देर इज अ सिंबल. ओके, जो नॉर्मली प्रोग्रामिंग में होता है. एक तो कॉमा हो सकता है, स्पेस हो सकता है, टैब हो सकता है, डैश हो सकता है, स्लैश हो सकता है. ये सभी है ना डीलिमिटर्स कहलाते हैं. ऑलराइट, स्पेस इज अ वेरी कॉमन डीलिमिटर. ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये दो वर्ड्स के बीच में या फिर कहीं तो भी डीलिमिटर है या नहीं. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स सच एज कॉमा और टैब्स आर सेपरेटिंग, या फिर देयर आर सम स्पेसेस ओवर हियर. राइट? तो ये सेकंड सिलेक्ट कर रहा है. एंड व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट, अब ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, इसको हम विजार्ड कहते हैं. लुक एट दिस टाइटल, विजार्ड. विजार्ड का मतलब है जादू की छड़ी, काइंड ऑफ. Okay, person who has magic in his or her hands is called a wizard or a witch. लेकिन वो विजार्ड करता क्या है कि सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाओगे आप तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सब कुछ काम करके देता है. राइट? सो ये विजार्ड खुल रहा है इसको. यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, यू विल सी कि इसने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है कि स्पेस है दोनों के बीच में. ठीक है, तो बराबर उसने है ना वहां पे डिवाइड करके दे दिया आपको. टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड करके दे दिया. राइट? नेक्स्ट, अब ये क्योंकि टेक्स्ट है, साधा टेक्स्ट है, तो वो जनरल फॉर्मेट है. अगर डेट होगा तो डेट फॉर्मेट पिक करेगा वो. जनरल या टेक्स्ट दो भी कोई भी आप ले लो. करंटली जनरल. एंड आई क्लिक ऑन फिनिश. कहाँ पे डिवाइड करना है? इसी जगह पे A1 B1 C1 में डिवाइड करना है तो स्पेसिफाई करो. नहीं चाहिए तो आप कहीं और डाल दो. योर चॉइस कहाँ करना है तो डिवाइड उसमें. ठीक है, नॉर्मली जहाँ पे है वहां पे डिवाइड करना ज्यादा इजी है. देन क्लिक ऑन फिनिश. क्या किया उसने, देखो अब डेटा अलग अलग कॉलम्स में आ गया. एंड नाउ एक्सेल कैन अंडरस्टैंड द डेटा बेटर. ऑलराइट, और एक है, आई विल शो यू.
और एक सिचुएशन हो सकती है कि जहां पे आपके पास टेक्स्ट है एंड दोनों के बीच में कॉमा है। अभी हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, तो आई एम क्रिएटिंग अ बैड डेटा, मीन्स अनक्लीन डेटा। ये अनक्लीन डेटा है। ऑलराइट, तो ऐसा भी अनक्लीन डेटा आता है कि जहां पे इट हैज कॉमास इन बिटवीन। ऑलराइट, तो जब आप डेटा क्लीन करने जाओगे तो ये पूछता है कि बाबा मुझे स्पेस तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कोई दूसरा कैरेक्टर है? तो ये पहला वाला सिलेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली। यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। राइट, is there a tab in between, is there a semicolon, is there a comma in between? As soon as you click on comma, you will see it is trying to divide it, and वो identify कर लेता है, yes, there is a comma and this is where I have to create the columns. All right, and then the rest is quite fine. ये देखो आपने इसने डिवाइड करके दे दिया। Got it? Okay. फर्स्ट डे में space हाँ, तो लेकिन अभी हमने डिवीजन बताया है, डिलिमिटर, कॉमा। स्पेस इज नॉट इंटरेस्टेड। अदर्स में क्लिक करेंगे तो अदर्स में आपको अलग सा सिंबल देने का चांस है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू जस्ट नाउ, कि जैसे आपके पास है ना, ऐसे मोबाइल नंबर्स होते हैं। यस, दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्मेट, क्योंकि 91 इज द कंट्री कोड। ठीक है, अब इनको अगर आपको डिवाइड करना है, सो यू हैव टेक्स्ट टू कॉलम्स। ये पहला वाला सिलेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे टैब नहीं, सेमीकोलन नहीं, कॉमा नहीं, स्पेस नहीं, कुछ नहीं है ना, तो मुझे इसको डिवाइड कहाँ करना है? डैश पे डिवाइड करना। तब आप अदर्स लोगे एंड अदर्स में मेंशन करोगे कौन सा सिंबल है। राइट, त्रिपुरा डैश ओवर हियर, इसने डिवाइड करके दे दिया आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट, फिनिश। अब ये अलग है, ये अलग है। ऑलराइट, सो ये बहुत यूजफुल है। यू वोंट बिलीव, अभी आप कभी किसी सॉफ्टवेयर से काम नहीं कर रहे हो, इसलिए यू आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेटा क्लीनिंग। ऐसा लग रहा है कितना आसान है, आसान है नहीं। जब वो फाइल आती है ना, इसमें इतना कॉलम्स ना, देर आर नियरली 10,000 रिकॉर्ड्स। आप कहाँ इसको डबल क्लिक करके सेपरेट करते बैठोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। एक टाइम क्या था, एक वीक लगा। सी, सो ही गॉट एन एक्सपीरियंस विद दैट, कि वो करने बैठो, सेपरेट आउट करने बैठो तो एक एक हफ्ता लगा इन लोगों को सेपरेट करने के लिए। हालांकि ये टूल पता होता तो इन 1 सेकेंड यू वुड हैव डन दिस। यस, राइट। सो जो काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, दीज आर अनक्लीन डेटा। अनक्लीन डेटा होता ही है मोस्ट ऑफ टाइम्स, ओनली इफ इट इज एसएपी, तब है ना डेटा आपका काफी हद तक क्लीन आता है आपके पास, क्योंकि उन्होंने इन सबके बारे में सोचा कि डेट का फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, कॉमास नहीं होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होने चाहिए, मर्जिंग नहीं होना चाहिए, इसके बारे में पूरा सोचा उन लोगों ने, तब जाके फिर वो रिपोर्ट बनाया। लेकिन कॉमन जो अगर छोटे सॉफ्टवेयर आप लेते हो किसी वेंडर से, तो बड़ा मुश्किल है। राइट, मर्जिंग इज अनदर वेरी डिफिकल्ट टास्क। इतने सारे कॉलम मर्ज किए होते हैं, दैट बिकम्स अ ट्रबल। राइट, सो वो भी हम देखेंगे। सो दिस इज वन टेक्स्ट टू कॉलम, सो भी राइट। अब there is a scenario like this also, कि I have name surname together. Okay, okay, अब इनको मुझे डिवाइड करना है। यस, इनको डिवाइड करना है। इफ देर इज अ स्पेस, यू नो, ओके ठीक है, मुझे इसको अनक्लीन डेटा है तो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, यस और नो, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है, कैसे है। फर्स्ट है, नहीं है, स्पेस है, दैट्स इट। नेक्स्ट, फिनिश, डिवाइड। ऑलराइट, सो नेम सरनेम को भी आप डिवाइड कर सकते
नेम सरनेम को साथ में लाना है तो क्या फंक्शन यूज करोगे? कॉनकैटेनेट। ऑलराइट, डिवाइड करना है तो यू विल गो बाय द टेक्स्ट टू कॉलम्स फीचर, राइट? सो दिस इज टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है? ओके। अनक्लीन डेटा में तो आपके पास बहुत सारा ऐसा भी होता है, जैसे डेट्स आते हैं, डेट्स बड़े अनक्लीन होते हैं। ओके, सो आई फाइंड वन फाइल फॉर यू पीपल व्हिच इज ऑलरेडी वेरी अनक्लीन, एंड वो प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ आपको, ठीक है? सो दिस थिंग। ओके, next part over here is these sections. We are just trying to find out these particular sections over here. इसमें और एक सेक्शन है which is कहते हैं डेटा वैलिडेशन। ऑलराइट, नाउ वैलिडेशन का डेटा कब होता है, कब इस्तेमाल होता है? जब आप there is someone else who is doing the entry on your behalf. ओके, माने क्या कि आपका ये डेटा चल रहा है, आपने यहाँ तक एंट्री कर दी, लेकिन किसी और को बोल दिया कि आगे का एंट्री तो कर। ओके, तो वहां पे है ना बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक? तो टू मिनिमाइज द डेटा एंट्री एरर्स वी आर गोइंग टू यूज डेटा वैलिडेशन। तो वो आप लिख लीजिए, डेटा वैलिडेशन। ये डेटा टूल्स हम देख रहे हैं, ये अलग अलग टूल्स हैं। डेटा वैलिडेशन इज द टूल, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज डेटा एंट्री एरर्स। ओके, अंडरलाइन मिनिमाइज। व्हाई? बिकॉज है ना, कुछ ह्यूमन एरर्स होते हैं जो आप निकाल नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली। ओके, we'll try and see what it is. How to use it? कि जहां पर भी एंट्री होने वाली है, ओके, उन सेल्स को आप कुछ सेटिंग देके रखोगे। ओके, मींस यू आर गोइंग टू अवॉइड और ट्राई एंड सी टू दैट सबसे कम एरर्स हो एंट्री करते वक्त, राइट? तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी सेल्स में एंट्री होनी है इन फ्यूचर, उन सब पे है ना सेटिंग लगा के रखोगे। उन सेटिंग्स के आगे पीछे अगर कुछ हो जाए, गलत एंट्री हो जाए, तो इस पर्सन को, मींस डेटा एंट्री ऑपरेटर को, आपको रोकना है कि बॉस आप गलत एंट्री कर रहे हैं। तो उसको है ना आप वार्निंग दोगे, बताओगे ये गलत है, एंड दैट पर्सन विल गो अहेड रेक्टिफाइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड देन डू द एंट्री। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डेटा वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का मतलब है सेटिंग लगाना है आपको स्पेसिफिकली, राइट? सो व्हाट डू यू डू? यहाँ पे तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो इसमें कुछ यूज नहीं आएगा, बट आगे यहाँ से आगे जो भी एंट्री होगी उनको आपको वैलिडेट करना है। नाउ अगेन सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आप इसके ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हो, जो टेक्स्ट है, नाम है, उसके भी एक लग सकते हैं, देन यू कैन पुट ऑन नंबर्स आल्सो। लेकिन दीज आर सब्जेक्ट मार्क्स, इसका एक अलग कैटेगरी है, राइट? तो जब आप सिलेक्ट करोगे तो मैं ये तीनों भी कॉलम सिलेक्ट कर देती हूँ, बिकॉज जहां पे भी नीचे एंट्री होने वाली है वो सभी सेल्स को सिलेक्ट करना जरूरी है, राइट? एंड देन नंबर्स होने की वजह से इसका सेटिंग अलग होगा, एंड टेक्स्ट अगर एंट्री कर रहे हो तो उसका सेटिंग अलग होगा, ठीक है? तो अलग वैलिडेशन आपको लगाना है। तो हियर आई एम सिलेक्टिंग द नंबर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मार्क्स ही है, इजंट इट? इनमें गलती होगी तो टोटल में गलती होगी, परसेंटेज में गलती होगी, हाँ या ना, राइट? तो यू आर द ओनर ऑफ द डेटा, आपको पता है इंपॉर्टेंस, लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठेगा उसको क्या पता है? he or she may make mistakes, right? तो आप validation लगा रहे हैं। So I'm selected all the, I've selected all those cells. Then I go into the validation over here. Can you see? As soon as I click on validation, we have three options over here: settings, message, error rate. ठीक है? पहले तो settings करो। क्या settings? Allow. Allow means क्या allow करोगे आप? What is allowed to enter? Right? अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेगा तो चलेगा? नहीं। टेक्स्ट डालेगा तो चलेगा क्या? नहीं। डेट डालेगा तो चलेगा क्या? नहीं। मींस एनी वैल्यू तो नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? क्या है इसमें? नंबर्स है, राइट? अच्छा, नंबर्स कौन से चलेंगे वो भी आपको पता है। मार्क्स है, सब्जेक्ट के मार्क्स है, माइनस में तो नहीं होंगे, 100 से ज्यादा तो नहीं होंगे, बराबर है? तो यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन है,
between 0 to 100 इन्हीं को अलाउ करो. You are allowing only those values. ठीक है, 0 to 100. डन, फाइन. अब बार बार तो उस बंदे के साथ बैठोगे नहीं आप, उसके साथ बैठना है तो फिर आप ही मत करोगे ना एंट्री. व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दिस. सो इसको आप है ना मैसेजेस दोगे. Because you are not going to be present with him or her, you need to tell the importance of that particular data. वहां पे आप मैसेजेस डालोगे. पहले तो शो द इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, ये ऑन करना है. टाइटल डाल के रखना है आपको कि ये क्या है, व्हाट इज दिस डेटा ऑल अबाउट. तो ये है सब्जेक्ट मार्क्स. ऑलराइट. अब मैसेज आपको डाल के रखना है उसके लिए कि प्लीज एंटर द मार्क्स properly. They are very important. Alright? ठीक है, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, here it is relevant कि आप मार्क्स ठीक से डालो, नहीं तो फिर गलतियां हो सकती है ना बाकी के कैलकुलेशंस. डन. अब इतना सब करके सेटिंग्स कर दिया, मैसेज दे दिया, फिर भी उसने गलती कर दी. ओके, तो उसको एरर अलर्ट करना जरूरी है कि बॉस गलत एंट्री कर रहे हो. राइट. सो देन इन दिस देयर आर 2-3 टाइप्स. स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन. तो वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन ये थोड़ा लीनियंट है, जिसे हम कहते हैं कि अलाउ करेगा, गलत एंट्री अलाउ करेगा. स्टॉप ऐसा है कि वो अलाउ ही नहीं करेगा, तो एक तो सही डाल, नहीं तो कैंसिल करता हूं. दैट्स द वे इट विल बी. राइट. अब यहाँ पे एरर का अलर्ट दे रहे हो तो आपको टाइटल भी वैसे ही डालना है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज चेक अगेन. ठीक है, या फिर एरर एरर एरर. ओके. एंड फिर मैसेज में ठीक से बताओ उसको करना क्या है, उसने क्या गलती कर दी है. तो यू आर गोइंग टू मेंशन कि प्लीज एंटर वैल्यूज बिटवीन 0 to 100 ओनली, या फिर वैल्यूज आर बिटवीन 0 to 100 ओनली, प्लीज एक बार चेक करो कि आप डाल रहे हो. राइट. डन. सो नाउ योर वर्क इज डन. आपने सब सेटिंग करके रखा है. कौन से सेल्स के ऊपर, ये सब नीचे के सेल्स के ऊपर. राइट. यहाँ पर भी करके रखा है, बट देन दैट इज ऑलरेडी एंटर्ड. ठीक है, रिटर्न ओके. ओके. जब ये एंट्री करने के लिए शुरू करता है पर्सन, गॉट इट. राइट. वो देखेगा. अब पहले तो है ना, एंट्री करने के से पहले व्हेन यू क्लिक ऑन दैट सेल, देयर इज अ स्क्रीन टिप बता रहा है कि सब्जेक्ट मार्क्स है, प्लीज एंटर द मार्क्स प्रॉपरली. बार बार आ रहा है तो एक बार तो पढ़ेगा ना वो कि बॉस ये क्यों आ रहा है. पढ़ेगा तो जरूर. राइट. एंड वो एंट्री करने जाए, गलती से एंट्री इस तरीके से हो गई, वो आगे बढ़ने जाएगा तो यू आर गोइंग टू सी दैट प्लीज चेक अगेन, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100 ओनली. एक तो वो रिट्राई कर सकता है, या फिर अगर वो कैंसिल कहता है तो वो डिलीट ही हो जाता है. मीन्स विदाउट अ प्रॉपर एंट्री यू आर नॉट गोइंग अहेड. गॉट इट. सो यू हैव एंश्योर्ड कि जब एंट्री हो जाए डेटा की तो ठीक ठाक हो. गॉट इट. बट आई टोल्ड यू टू अंडरलाइन द वर्ड मिनिमाइज. याद है. राइट. क्या होता है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल हो. किसी बंदे को 56 ये 58 दिखा टाइप, कभी कभी होता है ना, वो 6-8 की तरह दिखता है, फिर 8-6 की तरह दिखता है. अगर ऐसे नंबर्स हैं तो देन दैट्स अ ह्यूमन एरर. किसी को 56 के बदले 58 दिखा तो देन इट इज अ प्रॉब्लम. ओके. बिकॉज दैट 58 and 56 कम इन द सेम रेंज ऑफ 0 to 100. तो आप पूरी तरह से निकाल नहीं पाते हो, बट एटलीस्ट यू आर इंश्योरिंग कि वो एंट्री गलत ना. राइट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड स्टॉप सिग्नल होने की वजह से यू विल आइदर रीट्राई और कैंसिल. वो पूरी तरह से आपको है ना चांस देता है प्रॉपर डेटा एंटर करने का और आगे बढ़ने का. गॉट इट. राइट. ओके. अब डेटा एंट्री आपको निकालनी है, वैलिडेशन निकालना है, तो यू आर गोइंग टू जस्ट सिंपली सिलेक्ट ऑल दोस एंड गो अहेड विद द वैलिडेशन. यहाँ पे
क्लियर ऑल करोगे तभी ये वैलिडेशन चला जाए. टिल देन दैट वैलिडेशन इज ऑन. गॉट इट? राइट? नाउ सेम थिंग कैन बी डन ऑन द टेक्स्ट. ठीक है? वैलिडेशन, सेटिंग्स, एनी वैल्यू नहीं, मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट लेंथ को कंट्रोल कर सकती हूँ. ओके? टेक्स्ट लेंथ लेस देन 7 कैरेक्टर्स ऐसे डाल देती हूँ. मुझे शॉर्ट नेम्स चाहिए, मुझे बहुत लंबे लंबे नेम्स नहीं चाहिए, शॉर्ट नेम्स चाहिए. राइट? सो आई कैन पुट इट एज दिस थिंग. पुट द मैसेज. प्लीज एंटर शॉर्ट नेम्स. राइट? एरर अलर्ट. अब मैं ये वार्निंग या इंफॉर्मेशन दिखा देती हूँ आपको. एंड यहाँ पे एंटर नेम्स लेस देन 6 कैरेक्टर्स. ये बताना जरूरी है. राइट? एंड देन आई क्लिक ऑन ओके. अब यहाँ पे शॉर्ट नेम्स अगर है, एक्सेप्ट करता है. अगर बड़ा नाम है, राइट, वो बोलता है कि प्लीज चेक एंटर नेम्स लेस देन 6 कैरेक्टर्स. ओके कर दिया. तो अब ये वार्निंग इंफॉर्मेशन है, जैसे इंफॉर्मेशन वाला है ना स्टाइल, तो आप ओके करते हो तो ये एक्सेप्ट करता है. आप बोल रहे हो अच्छा ओके है, अगले बार देखता हूँ. दैट्स द मीनिंग ऑफ इट, कि वो एक्सेप्ट कर लेता है. लेकिन स्टॉप स्टाइल ले लिया तो इट विल नॉट अलाउ यू टू डू द एंट्री एज पर द प्रोसीजर. ऑलराइट? सो दैट इज डेटा वैलिडेशन. ऑलराइट? फाइन. नाउ देयर इज वन मोर वैलिडेशन ऑन लिस्ट एक्चुअली. ठीक? तो लिस्ट में से ही सिलेक्ट करो, ऐसा एक वैलिडेशन. ओके, लेट्स सी दैट आल्सो. Let me pick up relevant data. I'm just trying to show you different types of this thing, data validations. ठीक है? अब suppose you had one more column over here by the name cities. अलग अलग cities में या फिर अलग अलग regions में काम हो रहा है. Right? तो आपकी कंपनी का काम was in some say 5 different cities. तो उन्हीं cities के नाम उस डेटा में आने चाहिए. This what? ठीक है? कोणी सांगायचं ना मग किंवा तुमचे डोळे आपले स्क्रीन झाल्यानंतर करते मला. सो उन्हीं सिटीज के नाम आने चाहिए. सो देर इज अनदर वैलिडेशन कॉल्ड एज लिस्ट वैलिडेशन, कि उसी लिस्ट में से आपको एंट्री करनी है. ओके? सो देन हाउ टू डू दैट? पहले तो है ना, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन कौन से. तो उसी शीट पे बनाओ कहीं तो भी, या फिर किसी और शीट पे डाल दो विच इज हिडन. इट्स योर चॉइस. लेकिन सिटी के नाम है यहाँ पे. Say you are doing work in Mumbai, your company is doing work in Pune, then in Bangalore, right? Chennai, whatever. So these names, use data. Okay, right? और क्या है? कुछ नाम बताओ. हैदराबाद. ओके. और एक बताओ. दिल्ली. ठीक है? सो ये काम हो रहे हैं. ठीक है? अब हमें ये ना इसी सिटीज में से आपको सिलेक्ट करना है. तो व्हाट यू विल डू इज यू आर गोइंग टू दिस डेटा वैलिडेशन, जहां पे भी डेटा होना है, एंट्री होना है. सिलेक्ट, अप्लाई, वैलिडेशन. अब इसमें सेटिंग्स में अलाउ, अलाउइंग ऑफ अ स्पेसिफिक लिस्ट ओनली. एंड वेयर इज द लिस्ट? सोर्स का मतलब है लिस्ट कहां पर है. तो आप जाके बताओ कि लिस्ट कहाँ है. तो ये वाली लिस्ट है. और ओपन इट अप. दैट्स इट. बाकी तो आसान है. सिटी नेम्स, प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ओनली. यस.
मुझे यही देना है, तो आई जस्ट गो टू द एरर अलर्ट। स्टॉप करना है आपको, यू डोंट वांट एनी अदर एंट्री टू बी डन, तो एरर डाल दिया मैंने एंड मैसेज ठीक से डाल दिया उसका। गॉट इट? क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे आ जाओगे, देयर इज अ स्पेशलिटी ओवर हियर, कैन यू सी? राइट, आप इसी में से सिलेक्ट करोगे, आगे इसी में से सिलेक्ट करोगे, आगे यू ट्राई टू पुट समथिंग, गॉट इट? retry and select and select, that's it, right? अब ऐसा है कि अगर ये लिस्ट चेंज होता है, हो जाती है, यू वांट सम मोर सिटीज टू बी एडेड इनटू दैट, राइट? तो फॉर एग्जांपल यू एडेड मे बी सातारा, सांगली, राइट? अब नए ऐड हो गए हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो भी डेटा वैलिडेशन है ये वाला, उसके सोर्स में जाना है, राइट? यू सिलेक्ट द सोर्स, सोर्स को आप मॉडिफाई करोगे, ओपन अप करोगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो क्या होता है, when you are selecting, now you have others added as well, got it? So now the data entry is, at least you are ensuring कि कम से कम प्रॉब्लम्स हो, ओके? एंड ये क्यों जरूरी है, बिकॉज when you are doing sorting, filtering, बिलीव मी, मुझे इतनी तकलीफ हुई है इससे। क्वालिफिकेशन नाम का एक कॉलम था हमारे डेटा में हमेशा, तो मेरे पास से 10 काउंसलर्स थे, तो एक काउंसलर है ना सातारा स्पेस या फिर सातारा डॉट डाल देता, या फिर एस कैपिटल डाल देता था, कैपिटल एस एंड कुछ जगह पे स्मॉल एस। नाउ एक्सेल डज नॉट आइडेंटिफाई कैपिटल एस एंड स्मॉल एस एज द सेम, इवन इफ द स्पेलिंग इज सेम। तो अब क्या होता है, अगर मैं फिल्टर करने जाऊं तो मुझे 2 सातारा दिख रहे हैं, हालांकि सातारा सातारा ही है, but then I have 2 sataras. Now my filtering is also affected, my sorting is also affected, and it is a tough time, okay? तो उसको फिर से रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, गो बाय फाइंड एंड रिप्लेस। तो आपको ऐसे करना था, अगर स्पेलिंग माने कैपिटल स्मॉल होता तो यू विल हैव टू गो इनटू सॉर्ट फाइंड एंड रिप्लेस, तो स्मॉल एस को बिग एस से कन्वर्ट करो, देन पहले तो वो पूरा डेटा ठीक करो, उसके बाद देन यू हैव टू गो अहेड विद सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द डेटा वैलिडेशन, कि बाबा तू इस लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ spelling mistakes, there is no question of someone adding something else to that particular column, so things are much better, okay? Right? So this is one more validation, okay? So we'll stop for today, and you can practice this part of validation and text to columns, got it? Right? I'll try and get a file which is already unclean, जैसे मैंने कहा आपको एक unclean file दे देती हूँ, and then try to clean that file and see how it works, okay? तो ये तो basic पहले practice कर लीजिए, got it?